Welcome back to another exciting episode of the Great Indian Brand Show. And like I said, आपने अभी पीछे देखा था कि that we had a wonderful guest in one of our episodes, a young girl, a young entrepreneur, a tarot reader, and when such kind of entrepreneurs, young blood, when they come onto our show, it redefines our existence. It tells us why we are here, and it actually proves why we are over here. Starting say the entire purpose was to promote entrepreneurship and to help business owners across the length and breadth of this nation, position themselves into the hearts of the people. तभी हम कहते हैं हम जीतो भारत का दिल. भारत का दिल जीतने के लिए जैसे मैंने बोला भारतीय का दिल जीतना बहुत जरूरी है. वो कैसे? जब वो अपनी गाथा आपको सुनाते हैं, जब आपको वो अपने बारे में बताते हैं. No journey is too small, no journey is too great. But what happens during the journey, and what you gather from it, that is what defines कि आपका कैरेक्टर कैसा बना है और उस चीज से आप कितने दृढ़ बने हैं, and the foundation that is seeded into you, through that journey. And when you start off young with a certain, kind of responsibilities on your shoulders, the pressure is altogether different. But when you are sure that the mentoring is coming from the right side, boss, then you only need your wings to fly. You don't need anything else. आपका काम है बस सिर्फ चलते रहना और आकाश आपके लिए, गगन खुला हुआ है आपके लिए, आसमान में उड़ान भरने के लिए. When I was one day, speaking about certain issues in branding and advertising to a fellow friend and all, and that is when I suddenly came upon a thought. We, that in me like Sudarshan, 50 plus and all that, we are a dying generation. The India that you have to look out for is among the youth, among the children, Those who are in their 20s and 30s, yes, they are going to be the torch bearers. And I'm so happy to introduce one such torch bearer to you today. And I'm grateful, क्योंकि हमारे जो sponsor है Property Promotions, he's the next gen business owner who's a part of that family of Property Promotions, who's a title sponsor for this season 5. This young man has entered the shoes of the realty industry under the guidance of his wonderful father and has already carved accolades for himself. At that age, having that kind of knowledge, it is simply unbelievable. So, on the sets of the Great Indian Brand Show today, we have the young Turk of real estate, the second gen of Property Promotions. We have Sonaj Kokreja with us over here today. Thank you, Sonaj, for being on the show. Thank you, sir. And also for the kindness and having, got this entire thing done. It just happened in a jiffy. 3 days ago, we didn't know what was happening. We had no idea. We were only planning and we said, okay, let's start doing it and we do it this way. So amazing. Thank you so much, Sonaj. Thank you, sir. Thank you. Yeah, you must have given many interviews yourself, I'm sure. कि आप मेरे mentor के साथ भी बैठ चुके हैं, Mr. Rajesh Kapoor, who actually got me into this line. उनके साथ भी बैठ चुके हैं and all, and now you are over here. Yes. So the pleasure is actually mine. No, it's an honor. Sir. Thank you so much. So the one thing that I want to ask you, Sonaj, today is, which everyone would love to know, at such a young age, holding such a huge responsibility of a company, and then wearing those shoes as a real estate consultant with so much of experience at such a young age again, how does it feel? Definitely, it is a big responsibility because real estate involves lot of things. आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं. हाँ. And they're investing their hard-earned पेचीदा money. बिजनेस है, आसान काम नहीं है. हाँ, और कोई भी अगर आपके साथ ट्रस्ट कर रहा है, they are investing their hard-earned money. हाँ. किसी की पूरी लाइफ की इन्वेस्टमेंट है जो शायद घर प्लान कर रहा है. हाँ. और someone is, बहुत मेहनत से पैसे कमा रहे हैं, ऑफिस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, डेफिनेटली एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बट बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ माय फादर एंड हमारा फैमिली बिजनेस है, सो इट मेक्स इट अ लॉट इजी बिकॉज इतने टाइम तक व्हेन यू आर इन द बिजनेस,
so you have that kind of network, you have ऑब्वियस access. आप उसी माहौल में पले बड़े हुए हो हाँ और जी, हाँ जी। आपके पास एक्सेस है इन्फॉर्मेशन का, तो वो थोड़ा हेल्प कर देता है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हेल्प कर देता है, ऑब्वियसली। बट स्टिल बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है बहुत चीजों के लिए। बट रियल एस्टेट बहुत अच्छा, इट्स लाइक अ सी, बहुत कुछ है इसमें जो अगर जनरली जो लोगों को नहीं पता है, पीपल सी अ वेरी आई थिंक नैरो पिक्चर की, उसमें सिर्फ एक घर लोग लेते हैं या कोई एक दुकान लेता है, उस तरीके से लोग प्लान करते हैं। बट अगर इसका एक बिगर पिक्चर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा, इट्स लाइक अ सी, अ लॉट ऑफ थिंग्स गो बिहाइंड द सीन्स की। एक प्लानिंग होती है, नए आर जोन्स आते हैं, वहां पे कमर्शियल कितना आ रहा है, रेजिडेंशियल कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग किस तरह के रेट्स एस्टैब्लिश होंगे और कहाँ कितना एप्रिसिएशन होगा, टाइमिंग क्या होगी। ओके। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एक सिटी के डेवलप होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो वो स्टडी करना अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो कि शायद बहुत लोगों को नहीं पता होता। हाँ नहीं, क्योंकि वो पैटर्न बड़ा मुश्किल है। सी पीपल हैव बीन आफ्टर मी पिछले 1.5-2 साल से दैट आई क्रिएट प्रोग्राम्स ऑन रियल एस्टेट एंड ऑल, एंड बिलीव मी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। एंड योर फादर इज गोइंग टू स्पैंक मी फॉर दिस वन, मतलब वो कहेंगे कि आओ मैं आपको बताता हूँ, झाड़ू से मारेंगे मुझे पकड़ के, क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला था कि अरे आप करो आप करो, लेकिन वो कदम लेना बड़ा मुश्किल है, वो समझ में नहीं आता। जैसा कि आपने बताया, सबको पता नहीं होता रियल एस्टेट, क्योंकि क्या है कि हम लोगों की कंडीशनिंग इस तरीके की होती है, जो मिडिल क्लास जो जहां से बैठते हैं ना, देखो जिसने कदम ले लिया, अब आज की डेट में मैं बताता हूँ, आई गिव यू एन एग्जांपल, बिकॉज आई एम श्योर आप या आपके फादर अगला क्वेश्चन यही पूछे कि हम भी वहीं से उठकर आए और हम कर रहे हैं, राइट। अब मैं बताता हूँ, मैं ब्रांड बिल्डिंग कर रहा हूँ, मेरे खानदान में किसी ने ब्रांड बिल्डिंग नहीं करी, मेरे खानदान में सब पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे का मतलब यह है कि कोई पीएचडी से कम है ही नहीं। ओके। किसी ने क्वाड्रुपल एमएससी करी है, कोई यू नो एमफिल से भी पोस्ट डॉक्टरल में है, सारे मतलब इतनी डीप पढ़ाई के अंदर वो इतने आगे गए हैं। ये ब्रांड नाम के वर्ड से पढ़ाई लिखाई करी है, और मैं क्या हूं, लिखा पढ़ा, मैं पेंटिंग किया हूं, इसलिए मैं कहता हूं मैं लिखा पढ़ा हूं, बाकी सब पढ़े लिखे हैं। तो मैंने कदम लिया। अब मेरे फादर को जब पता लगा था पहली बार कि मैंने बिजनेस शुरू किया है, ही वाज फ्यूरियस एंड ही वांटेड टू थ्रो मी आउट ऑफ द हाउस, क्योंकि उनके माइंड में इमेज है कि बिजनेस ओनर मतलब वो खून ही चूसेगा लोगों का और बर्बाद ही करेगा दुनिया को और कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हिंदी पिक्चरों के जो लाला की जो तस्वीर थी वो छपी हुई थी। तो मैं उसमें मैं बोल रहा हूं, क्योंकि कदम लेना हर एक के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपसे 3 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहता हूं, ठीक है। नंबर 1 हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप, मेरा सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई हैव। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द पॉइंट नॉट ऑफ द इन्वेस्टर बट ऑफ दैट पर्सन जिसको एक घर चाहिए, जिसका सपना है। इन्वेस्टर पे बाद में, इन्वेस्टर के पास तो पैसे हैं, वो तो आएंगे ही, सो विल नॉट टच दैट नाउ। ऐसी कौन सी 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए उनको जो घर खरीदना चाहते हैं, जिनको लगता है घर खरीदना बहुत मुश्किल है और वो शायद ना खरीद पाए आज का दौर देखते हुए? क्योंकि मैं भी देखता हूं कई बार 1.5 करोड़ का फ्लैट, 3 करोड़ का फ्लैट, मैं बना किसके लिए रहे, तनख्वाह तो लाख रुपए की भी नहीं है महीने की, राइट। सो क्या कहना चाहोगे? सबसे पहली चीज, जो अगर किसी को भी घर लेना है, तो घर लेने से भी पहले एक ब्रोकर का होना बहुत जरूरी, कि एक राइट ब्रोकर से आप टच में आओ और वो राइट ब्रोकर आपको गाइड करे कि किस तरीके का घर लेना चाहिए। लोग क्या होता है कि आजकल सबको लगता है कि खुद ही सब कुछ कर लेना चाहिए, बट एक्चुअली जिसका जो काम होता है, अब जैसे आप ब्रांडिंग में हो, सो ऑब्वियसली यू नो मोर अबाउट इट। या अब एक ब्रोकर का काम है कि वो आपको ठीक तरह से आपकी बजट में एक राइट डेवलपर के प्रोडक्ट, जो कि जिसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, जिसने कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर करे हैं, जिसकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में क्या है, ये सब स्टडी करके आपको एक राइट ऑप्शंस दे और फिर उस ऑप्शंस के साथ आप वर्क करो। सो इट्स लाइक, मैं आई विल पुट इट इन दिस वे, अगर आप सोच रहे हैं व्यूअर्स की इसका मतलब क्या है कि मतलब हमें प्रॉपर्टी डीलर से मिलना पड़ेगा, अगर आप ऐसे माइंडसेट से जाएंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आपके घर में भगवान ना करे आप बीमार पड़े, आपका बेटा बीमार पड़े, बेटी बीमार पड़े, माँ बाप कोई बीमार पड़े, तो आप किसी
दवाई देने वाले के पास नहीं जा रहे, आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हो जो क्वालिफाइड है, राइट। ठीक है। आप यही नहीं करें कि यार इसको पुड़िया दिला दो, क्या आप ये सोचते हो? तो रियल एस्टेट ब्रोकर इज योर डॉक्टर फॉर रियल एस्टेट। यस। यू हैव टू हंट फॉर द राइट डॉक्टर। गलत डॉक्टर भी होते हैं, सही डॉक्टर भी होते हैं, राइट? एक राइट गाइडेंस होनी या बहुत जरूरी है। हाँ और फिर ज्यादा जो मेरे ख्याल से लोगों को वर्किंग करनी चाहिए, उस ब्रोकर का रिकॉर्ड देखना हाँ, चाहिए तो कि आई उसने कमिंग, दैट इज कितने। व्हाट माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उसी से रिलेटेड, उसी संदर्भ में मेरा अगला क्वेश्चन है। 3 चीजें अगर आप घर खरीदना चाहते हो, अपनी प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, अपने मेहनत के पैसों से आपने अपना एक छोटा सा ऑफिस लेना है, 100 गज का, 500 गज का, घर खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, 3 बेडरूम 4 बेडरूम व्हाटएवर, राइट? बिल्डर फ्लोर अपार्टमेंट, राइट? यू मस्ट गो टू अ ब्रोकर, दैट्स इट। अब मेरा सेकंड सवाल, मान गई हमारी जनता कि हाँ जी ब्रोकर के पास जाएंगे। अब आप हमें ये बताओ सर कि ब्रोकर अच्छा कौन है, ये कैसे पता लगेगा? दिस इज माय सेकंड क्वेश्चन। देखो, इन टुडेस टाइम्स वी आर लिविंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज वेरी एक्सेसिबल। तो एक फर्स्ट अच्छे ब्रोकर की पहचान ये है कि उसकी डिजिटल प्रेजेंस कैसी है, कि वो हाँ, कितना। आजकल तो सर एवरीथिंग इज अवेलेबल, और अगर जिसकी डिजिटल जो प्रेजेंस ही नहीं है, जो आज के टाइम के साथ ही नहीं चल रहा है, आज हम एआई के टाइम में जी रहे हैं, तो एक बेसिक प्रेजेंस भी अगर किसी की नहीं है, तो फिर पॉइंट 1 तो यही है कि वो कितना टाइम के साथ चल रहा है या टाइम के पीछे चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें एक और बहुत, देखिए ये सिर्फ मार्केटिंग की बात नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं, अगर कोई गलत आदमी है और वो डिजिटल प्रेजेंस बना रहा है, यस बना सकता है, लेकिन उसके कमेंट लाइन और उसके सेक्शन को जरूर जाके देखिएगा, आपको पता लग जाएगा, आपको रेटिंग देख के पता लग जाएगा। बहुत से तरीके होते हैं, हाँ। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कौन, हु इज द राइट पर्सन टू गो टू। जैसे कि मैंने इवन बिफोर आई हैड मेट मिस्टर गोपाल कुकरेजा, मैंने उनका नाम कहीं से सुन रखा था। जी जी जी। हम लोग 3-4 साल पहले किसी संदर्भ में मिले भी थे, 2-3 साल पहले इवेंट वगैरह में, तब से मैं उनको जानता हूं, लेकिन मेरी उस लेवल की बातचीत नहीं थी जो आज है, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सीक आउट द राइट ब्रोकर, एंड दैट इज द वे। एंड कंसल्टेंट, लेट्स कॉल इट कंसल्टेंट, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। ठीक है ना? आप उसको उस वे में देखिए, क्योंकि एक कंसल्टेंट जो होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है, ब्रोकर जो होता है वो ब्रोकरेज के साथ आता है। वो आई वुड Right, से, sir. बिकॉज आपकी इमेज मार्केट में एज कंसल्टेंट्स ज्यादा है। कि अगर पूछ लो गोपाल जी से बात कर लो, क्योंकि यही बताते थे मेरे को लोग, कि मेरे को पीछे एक जगह मैं फंसा हुआ था, तो मेरे को ये बोला गोपाल जी से कंसल्ट कर लो, ये बोला था। नहीं, बाय ग्रेस ऑफ गॉड हमारी जो कंपनी है स्टार्टेड बाय माय फादर, इट हैज बीन नाउ 30 इयर्स नाउ। तो ऑलमोस्ट 30 साल का सफर है। तो 30 साल में लोग एक मार्केट में, दिल्ली एनसीआर में जो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी कंपनी की, फरीदाबाद से हुई थी, तो आज एक उस तरीके से हम एस्टैब्लिश हो गए हैं कि कहीं ना कोई हम लोगों को जानता ही है। अगर दिल्ली एनसीआर की मार्केट की बात करें, गुड़गांव की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, कोई अगर कोई प्रॉपर्टी ले रहा है, तो बाय ग्रेस ऑफ गॉड आज हमारा नाम इस तरह से एस्टैब्लिश हुआ है कि कहीं ना कहीं कोई म्यूचुअल कनेक्शन निकल ही आता है। जी जी, तो उस तरीके से हमें काफी हेल्प हो जाती है इस एक्सपीरियंस की। वंडरफुल। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि एक कंसल्टेंट और ब्रोकर जो हम कहते हैं वो बहुत जरूरी है। सेकंड, हु इज द राइट पर्सन, उनमें कौन सही है, वो ढूंढने का तरीका बताया हमें सुनांश ने। अब तीसरा और बहुत ही अहम प्रश्न, एंड इन नो ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट टू, इक्वली इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा, मतलब इट्स वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चंस। व्हेन समबडी वांट्स टू बाय अ प्रॉपर्टी, should one look at his her pocket size, or should one look at his her paying capacity and comfort size? ये क्या, कि मैं ये बहुत ही, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इसलिए क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार ये ले लेते हैं, 2-3 साल तक इसे झेल लेंगे, फिर इसको बेच देंगे, हमारे को इतने पैसे मिल जाएंगे और इतना हो जाएगा। मार्केट भरी पड़ी है ऐसे लोगों से, द वर्ल्ड इज। तो आप क्या एडवाइस करोगे इसमें? यू कैन ऑल्सो डिवाइड इट इनटू कैटेगरीज ऑफ पीपल। प्रॉपर्टी का क्या है, एक बहुत जनरल सा, आप इसको ह्यूमन नेचर कह सकते हो। खरीदते हुए हमेशा महंगी लगती है, बेचते हुए हमेशा सस्ती लगती है। तो आप कभी भी किसी भी टाइम पे आप जाओगे, यू विल बी नेवर सेटिस्फाइड कि हाँ कि ये ठीक है। तो थोड़ा सा ऑब्वियसली स्ट्रेच करना पड़ता है, बट ऐसा भी स्ट्रेच नहीं करना चाहिए कि इलॉजिकल हो या वो आप उस चीज को फुलफिल ना कर पाओ। एक आजकल तो मेरे ख्याल से बैंक लोन, होम लोन बहुत अच्छी एक
चीजें लोग कहते हैं लोन अवॉइड करना चाहिए, बट एक्चुअली बैंक लोन हेल्प्स इफ यू Okay. यूज इट राइट वे. जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें लोन मिल रहा है, अगर राइट तरीके से उसको यूज करा जाए, तो आई थिंक बैंक इज अ ग्रेट सपोर्ट इन टुडेस टाइम्स की कोई भी अपना घर प्लान कर सकता है. राइट तरीके से यूज करना मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ. अब आपने सपोज 1 करोड़ रुपए का घर लेना है, तो आज की डेट में 8 से 9% बैंक होम लोन का इंटरेस्ट है. तो आप अगर बैंक का सपोर्ट ले लेते हो और वो 1 करोड़ रुपया आप अपने बिजनेस में लगाते हो, अब 8-9% के लोन के हिसाब से सपोज वो 15 साल का लोन है, आपके 80-90 लाख रुपए इंटरेस्ट हो गया टोटल. अब अगर मैं वो 1 करोड़ रुपया बिजनेस में लगाऊंगा और 15 साल तक लगाऊंगा, तो लोग ये चीज नहीं समझते कि अगर मैं 15 साल तक लगा रहा हूं तो मेरा वो 8-9% नहीं जा रहा, मेरी कंपाउंडिंग हो रही है. 1 करोड़ रुपए अगले साल मेरा 8 हो रहा है, तो मेरी कंपाउंडिंग होके 15 साल में मेरे पैसे बढ़ रहे हैं. तो उस तरीके से आपके 1 करोड़ रुपए तो बहुत बढ़ गए अगर आपने होम लोन में नहीं लिया तो. बट अगर लोन लिया तो आपका वही इंटरेस्ट जाता रहेगा. तो ये दो चीजों के बीच जो कंपाउंडिंग एक चीज है जो लोग समझ नहीं पाते, जिसको आप अपने बिजनेस में यूज कर सकते हो, तो उस तरीके से होम लोन काफी हेल्प करता है. और मतलब आपका कहने का मतलब आप यही भी कह रहे थे बीच में कि व्हाट यू हैव सेड कि मतलब कि उतना लो जितना कि आप झेल सको उसको. हाँ जी. सो मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि पीपल देखो गो फॉर समथिंग दैट यू कैन सेल थ्रू कंफर्टेबली इन द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स आल्सो. राइट. बड़ा घर अपने आप समय के अनुसार हो जाएगा, जो आप ले सकते हैं, जिसको आप झेल के जा सकते हैं आगे. आपको पता है कि वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन में मैं इसकी इंस्टॉलमेंट निकाल सकता हूं, आप वो लीजिए. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उसका डबल भी हो जाएगा. एम आई राइट? राइट. आप ऐसा कर सकते हैं कि जिस जगह पे आप प्लान कर रहे हैं, एक डेवलपिंग जगह पे प्लान कर रहे हैं घर लेना, तो हमने जैसा लास्ट 20 ईयर्स में देखा है, अगर लोग होम लोन पे घर भी ले रहे हैं तो उसका जो इंटरेस्ट होता है वो अराउंड 8-9% है पर एनम, अगर आपका सिबिल अच्छा है तो. अगर घर की किस्त जैसे 15 साल है, 20 साल है, तो इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना वो कैपिटल एप्रिसिएशन मिल जाता है आपको. मतलब घर की अपनी अलग तरीके से अप्रिसिएशन होती है. हाँ जी. या एब्सोल्युटली 15-20 साल के अंदर वो मतलब आज आप देखिए कि मतलब देयर वाज अ टाइम जब गुड़गांव में 1,000 रुपए गज जमीन मिलती थी, 500 रुपए गज जमीन मिलती थी, जहां बैठे हैं सोना रोड जैसी जगह पे. आज वहां पे 2 लाख रुपए गज है. दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, एंड दिस इज 20 इयर्स अगो. 20 इयर्स अगो आई वाज आल्सो हियर इन गुड़गांव. मैं भी 20-25 साल पहले था, लेकिन हमारे को कोई अक्ल ही नहीं थी. वी नेवर न्यू. मैं इसमें नाउ आई विल कम टू अनदर पार्ट. ये एक हो गया, आपने बताया कि देखिए घर लेने का तरीका इन्होंने बताया, छोटा ले लो, लो जरूर. और मेरे ख्याल से आपकी इस बात से आई विल से वन मोर थिंग, इनका कहने का ये भी मतलब है, व्हेन यू बाय प्रॉपर्टी एनीवेयर इट विल ऑलवेज अप्रिशिएट मोस्टली. डेफिनेटली, बिकॉज कई कुछ जगहों पे बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन कुछ जगहों पे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हो सकता है. वहीं पे कंसल्टेंट्स काम आएंगे. बहुत आपने जो कहा कि इट विल अप्रिशिएट, उसका बहुत सिंपल मैथ्स ही है, डिमांड और सप्लाई का भी है. जैसे लैंड इज लिमिटेड, इस दुनिया में हर चीज आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो, सारी चीजें रिपीटेटिव मोड में बन रही है, बट लैंड इज लिमिटेड. तो एक इंग्लिश में देयर इज अ सेइंग, बाय लैंड दे आर नॉट मेकिंग इट एनी मोर. एवरीथिंग कैन बी मेड. Wonderful. My goodness, how profound is that? By land. In today's You world, have got that embedded in me. in today's world where everything can be made, manufactured, land cannot be manufactured. So limited supply, unlimited demand. It is Limited basic. supply and unlimited demand. बिल्कुल ठीक है, सबको चाहिए रहने के लिए. अगर मैं कहता हूँ कि आई थिंक अगर ये फ्लोर्स में वाला सिस्टम ना हो ना, और सब ग्राउंड फ्लोर पे ही रहे, जगह नहीं बचेगी नहीं रहने के लिए. बिकॉज वन इज पाइल ऑन टॉप ऑफ द अदर. वी हैव 100 फैमिलीज पाइल ऑन टॉप ऑफ फ्लोर्स वन. भी तो लैंड पे ही बन रहे हैं वैसे. नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ अगर वो सभी जमीन पे रहने लग गए तो जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ एरिया दैट वुड बी गॉन. है ना? Right. Exactly. Yeah. Wonderful. Now I'll ask my second set of questions from a real estate consultant point of view. 3 things that you think a real estate consultant must always practice and remember to succeed in this business. To begin with, they should have a RERA license जो legally होना चाहिए. Every broker should be RERA verified, कि वो प्रैक्टिस करने के लिए एक
राइट। जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी डीलर, जो ओल्डन डेज में बोलते थे, हाँ। उनको भी रेरा का या लाइसेंस होना अब तो रेरा रिक्वायर्ड है अगर Okay. आप एनसीआर में या इंडिया में Okay. कहीं पे भी डील कर रहे हो डेवलपर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, तो फर्स्ट इज यू शुड बी रेरा सर्टिफाइड, एंड सेकंड इज कि जो आपका क्लाइंट बेस है या इन्वेस्टर बेस है, उनके साथ आप 1-to-1 कनेक्ट बनाओ। बहुत लोग होते हैं आज के टाइम में काम कर रहे हैं, टीम के साथ कर रहे हैं, या many Your people, personal connection is Yes. very, very, very important. पर्सनल कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्लाइंट आपसे घर ले रहा है या दुकान ले रहा है या कोई भी XYZ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आप उससे एकदम 100% अवेयर रहो, किसी पे डिपेंडेंट 100% ना हो, ना मैं कहूंगा टीम हाँ, पे मतलब हो योर सकता है। टीम इज इन टच, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यू शुड ऑल्सो बी इन टच विद देम टाइम टू टाइम। मेरे को आपने बहुत अमेजिंग चीज याद दिलाई। दिस हैपेंड विद मी वंस। वी हैड अ वेरी बिग क्लाइंट, तो सडनली वहां से काम कम हो गया। तो एक दिन मैं गया, मैंने कहा सर क्या हुआ आजकल, नॉट मच वर्क। करे नहीं, काम तो है। मैंने कहा सर नॉट गेटिंग एनी इनक्वायरीज। आपने बताया नहीं। मैंने तुम्हारे पास टाइम ही नहीं आके मिलने का। मैंने कहा सर टीम के सब लोग आते हैं एवरी डे। कहते तुम कब आओगे? वो He एक actually पर्सनल told me this. टच That day I बहुत learned. इंपॉर्टेंट है टू सस्टेन Yeah, this इन is बिजनेस। over 1.5 decades ago, 2 decades ago when this happened. Yeah. एंड थर्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि बीइंग इन रियल एस्टेट आप बहुत सारे डेवलपर्स के साथ काम कर रहे होते हो, जिनका पैसा क्लाइंट्स लगाते हैं, आपके क्लाइंट्स जिन पे ट्रस्ट करते हैं, तो उनका एक बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि क्योंकि आपका क्लाइंट ही आपके लिए सब कुछ है, जो आप पे ट्रस्ट कर रहा है, तो जिनके पास आप उनकी इन्वेस्टमेंट करा रहे हो वो राइट लोग होने चाहिए, उनका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, इंटेंशन ठीक होनी डिलीवरेबल चाहिए। मिलना चाहिए, डिलीवरी आनी चाहिए। कि ठीक है, अगर कई बार प्रोजेक्ट 5 साल 6 महीना लेट होते हैं, लेकिन ये पता है कि भाई इनका प्रोजेक्ट 100% डिलीवर होगा। ऐसा ना हो कि वो एक उस ड्यू डिलिजेंस में कमी रह आई जाए डोंट वांट टू टेक द नेम, और आप जो कह रहे हैं। उसकी प्रॉब्लम क्लाइंट को हो। मैं तो ये बहुत 3 समझ सबसे गया था। इंपॉर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट के लिए। पहला क्लाइंट, तीसरा बिल्डर, और चौथा जो प्रॉपर्टी दिला रहे हो वहां पे, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे कुछ हो, रेरा चाहे कोई घर बन रहा हो, चाहे सर्टिफाइड होना फ्लैट, हाँ, एंड ऑल दैट वगैरह। वंडरफुल, अमेजिंग, अमेजिंग। सो अभी आजकल व्हाट इज इट दैट यू आर हैंडलिंग इन योर कंपनी? आप क्या प्रोफाइल देख रहे हैं? लेट अस कम टू दैट पार्ट। अभी हम लोग 3 बहुत थिंग्स अबाउट सोनांश। अबाउट सोनांश, तो सब कुछ अबाउट प्रॉपर्टी है। तो अभी हम लोग बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो ढोलेरा गुजरात इज वन ऑफ देम, विच इज वन ऑफ द अपकमिंग थिंग। वहाँ हम लोग प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी वाइब्रेंट सिटी है विच इज कमिंग अप। तो वो है। बाकी जो मेन हमारा कोर है काम करने का, हम लोग एज अ प्रॉपर्टी प्रमोशंस वी आर मोर एक्टिव इन लैंड्स, प्लॉट्स। तो वो हम लोग ये एरिया आप देख रहे हो सोनली? हाँ, प्लॉट्स का मेनली मैं देखता हूँ। सोना हो गया, पलवल हो गया, एंड अभी पटौदी इज ऑल्सो अपकमिंग, तो वो भी हम लोग कर रहे हैं। बाकी गुड़गांव है ही, गुड़गांव में गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, SPR द्वारका एक्सप्रेस वे। तो मेनली दीनदयाल प्लॉट्स में हमारी एक्सपर्टीज है। लास्ट 6 साल से हम लोग जितने भी गुड़गांव में दीनदयाल प्रोजेक्ट्स है उसमें हम लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं, एंड मेजॉरिटी ऑफ दीनदयाल जितनी भी गुड़गांव में है, कहीं ना कहीं हमारा रोल उसमें है। अच्छा, सेल करने। एक मैं क्वेश्चन पे आना चाहता हूँ। कई लोग ना, जरा मेनी बुद्धिजीवी बहुत हैं, और सबकी बात सुनना जरूरी है। सम पीपल रियली स्पीक अमेजिंग व्हेन इट कम्स टू रियलिटी एंड ऑल, एंड सम पीपल एक्चुअली हैव नो लैंग्वेज, बट सिंस इट्स रियलिटी एंड एवरीबडी फील्स दैट दे कैन स्पीक अबाउट इट, दे स्पीक। एक बात बताएं मेरे को, कई लोग ये इक्वेशन देते हैं कि अगर भैया आप इक्वेशन करके देखो, रेंट देना ज्यादा बेटर है घर खरीदने से। आप क्या कहोगे? देखिए, अभी NCR में या इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो जो रेंटल ROI है वो कहीं ना कहीं 2.5-3% है। जब फिर उसी बात पे हम आ जाते हैं, और बैंक लोन 7-8% है। तो अब ये जो घर लेना है इंडिया में ना, बहुत ज्यादा एक कई लोगों का बहुत इमोशनल डिसीजन होता है। तो ये प्योरली जो घर लेना है, दैट इज नॉट मैथ्स। अब इंडिया में 10 में से 6 लोग कहते हैं कि हमें घर लेना है, इट्स नॉट अबाउट मनी, हम बाकी जगह धंधा कर लेंगे। बट 4 लोग ऐसे भी हैं जो उसमें मैथ्स लगाते हैं और
तो ये बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है। इसको मेरे हिसाब से जो ये बात मेरे से पहले भी लोगों ने डिस्कस करी है, मेरे ख्याल से इस चीज को जनरलाइज नहीं करा जा सकता कि विच इज बेटर। हर एक, अगर यहाँ 10 लोग हैं तो 10 में से 6 का शायद ये टेक है कि अपना घर होना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो दैट्स मैं वही पे आ इमोशनल रहा था फैक्टर कम्स कि इन। व्हेन इट कम्स टू कि Yeah. नहीं मेरा अपना घर मेरे को हाँ। चाहिए, तो आप 8 करोड़ की प्रॉपर्टी लेके भी बिल्कुल ठीक है, 4 करोड़ की भी लेके ठीक हाँ। है, लेकिन अगर आप एज एन इन्वेस्टर लेना चाह रहे हैं तब आपको देखना है कि भाई रीसेल क्या है। देन आई थिंक रेंटल इज वे बेटर, अगर आप उस तरीके से देखते हैं, क्योंकि उस पैसों को आप बिजनेस कर में यूज सकते हैं, कर हाँ। सकते हैं एंड इट कैन गिव यू मोर ROI. Wonderful, wonderful, excellent, excellent, amazing. So let me come to a very interesting part of this entire session with you. Let's have a little bit of a rapid fire kind of a thing, जो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न होंगे, तो हम पूछे। लेकिन बिफोर एंटरिंग दिस मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। मैं दिल्ली में अराउंड 86-87 से रह रहा हूँ। आई हैव सीन दिल्ली ग्रो। NCR आई केम इन 2005। जब मैं 2005 में आया था तो गोल्फ कोर्स रोड पे एक कन्वर्जेंस की बिल्डिंग थी और एक अमेरिकन एक्सप्रेस की बिल्डिंग थी और कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये सब कुछ खाली था। ऑलराइट, एंड देन सोला रोड एंड ऑल दैट वाज एम्प्टी। गुड़गांव इतना अमेजिंग बड़ा और इतना एक्सपेंसिव बन गया। जी। व्हाई कुडंट नोएडा बिकम दैट? ये मेरे को आज तक समझ नहीं आया। Whereas Noida as a city is much better planned than Gurgaon, if you agree to me. क्योंकि वहां की प्लानिंग यहाँ से बेटर है, रोड्स बेटर है, कहीं कुछ पे कंडीशंस भी बेटर है। तो मेरे को ये आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड दिस कि ये कौन सा जिंक्स है। वो बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो कि एक शहर को मेरे हिसाब से इस लेवल पे लाती है कि जिस लेवल पे आज गुड़गांव है। बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें। एक तो कनेक्टिविटी, जो गुड़गांव की अब जो राजीव चौक से आप दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे है। दूसरी जो बहुत ही बेसिक चीज है वो रोजगार है। आज गुड़गांव में टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनीज है जो कि शायद नोएडा में नहीं है। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, वहां और क्यों नहीं गए? वहां भी क्यों नहीं? वहां तो इससे सस्ता है। गुड़गांव में पैन इंडिया से पीपल आर लिविंग हियर फ्रॉम चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, बॉम्बे। उन सब की जॉब्स यहाँ हैं जो कि अलग अलग, मतलब पूरी फैमिलीज के साथ शिफ्ट हो गए हैं। तो अभी अगर आप जितना भी देखेंगे एयर इंडिया या जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं कॉर्पोरेट के, वो आज गुड़गांव में एस्टैब्लिश्ड हैं। और वही एक कारण है कि जिसने रेजिडेंशियल को भी एक बूस्ट दिया और आज ये शहर आई थिंक इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट सिटी कह सकते हैं। या बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, बट मुझे लगता है इसके अंदर देयर इज अनदर थिंग आल्सो, जो मुझे लगता है, व्हाट आई फील इज दैट टुडे व्हेन वी स्पीक ऑफ यूपी we take pride, which was not there earlier. Well, the reasons are unexplained or maybe understood. But then I think that plays a very huge role. कि what are we getting as security? मेरे ख्याल से, जो मुझे लगता है, जो मेरे ख्याल से लोगों को गुड़गांव में ज्यादा नजर आई, and that is the reason why multinationals chose to come to Gurgaon डेफिनेटली rather than go to Noida. And you see the aftermath of that is still there. और मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता, हालांकि we've had people from real estate consultants from Noida on our program, really amazing one. आप हमारे पिछले सीजन में देखेंगे, सीजन 4 में, तो there was one gentleman over there, बहुत अमेजिंग काम है उनका। there are some amazing properties also over there वगैरह, because I'm sure आप भी करते ही होंगे बहुत सारी चीजें, बट आप लोग भी ये झेलते होंगे बहुत कुछ इस नहीं है। अब ये गुड़गांव टू गुरुग्राम की जो जर्नी है, हाँ, तो इसने बहुत कुछ देखा है। एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रा वी हैव, और बहुत सारी चीजें चल रही हैं। हाँ, अगर आपकी बात करूँ, जो अब न्यूज में भी आता रहता है, जिस तरह की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं या गोल्फ कोर्स रोड हाँ। पे, नहीं तो रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि देखिए जब बारिशें होती है यहाँ पे, देन गुड़गांव इज थ्रोन लाइक अ कॉप्स on the roads for the people to bloody kick and chew and dogs to chew and bite around, क्योंकि everybody knows कि क्या है यहाँ पे, मतलब बेसिक पानी। देखो, there's a wonderful saying, when it rains in a well planned city, when it rains, थोड़ी देर में पानी साफ हो जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में जब पानी गिरता है तो थोड़ी देर में ही सड़कें साफ हो जाती है।
पानी नहीं होता, you can't see the road, water remains but the road disappears, but elsewhere the water disappears and the road remains. उसके बावजूद लोगों की गाड़ियों के ऊपर से पानी निकल के जा रहा है. That madness of staying in Gurgaon, it is really unbelievable. It is unbelievable. it becomes hard for me to fathom the fact. मेरे फ्रेंड के फादर हैं, मेरी एक बार उनसे ये बात हुई थी. अंकल इज नो मोर, बट आई रिमेंबर ही टोल्ड मी दिस. कहते सुदर्शन, एक बात याद रखना, जहां पे जनता बसनी शुरू हो जाती है ना, वहां बिजली, पानी, रोड वोड सब अपने आप टाइम टू टाइम पहुंच ही जाता है एक टाइम पे. तो ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती प्रॉपर्टी लेने की. सो इफ एनी ऑफ यू are thinking of buying properties in Gurgaon or Noida or wherever, please to consult property promotions and don't think कि वहां पे आज क्या है, क्योंकि कभी ना कभी वहां पे सब सही हो जाएगा. I guarantee you, पश्चिम विहार में 360 गज की कोठी is more expensive than the one in Gurgaon. Definitely. Right? साइज भी कम आता है. साइज भी कम आता है. लेकिन पश्चिम विहार एक टाइम पे जब मैं शिफ्ट किया था, कि मैं पश्चिम विहार में रहता था, इसलिए बोल रहा हूँ, वहां पे एक सड़क थी और वो भी टूटी हुई थी और वो ही 2 वे थी, और हम लोग रोज धरना दे रहे होते थे उस सड़क पे, बिकॉज हर महीने किसी का एक्सीडेंट हो रहा होता था. और एक बार तो पूरी फैमिली उड़ गई थी क्योंकि बस वाले ने मिसटच कर दिया. ही टर्न द बस ऑन द अदर साइड, सेम रोड पे, पूरी फैमिली को कुचलता हुआ 8 लोग मार डाले. मेरे आंखों के सामने की बात बता रहा हूँ, व्हेन आई वाज इन क्लास 8th. राइट? लेकिन आज देखो, that entire road is commercialized, ज्वालाहेड़ी वाली रोड. I mean, it is impossible to get something over there. आप सोच भी नहीं सकते स्काई रॉकेटिंग क्या होगा वहां पे. राइट? बिल्कुल. तो जहां पे लोग पहुंच रहे हैं वहां पे सुविधाएं पहुंच ही जाएंगी, और ये हमारे लिए भी है, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए. सो इफ यू आर थिंकिंग इन दोस टर्म्स, वो बहुत अमेजिंग रहेगा. सो नाउ लेट मी कम टू रैपिड फायर क्वेश्चन विथ यू. ओके, इन अ सेकंड टू आंसर. Yeah. Okay, we'll have no reasons for it, but अगर मुझे लगा तो मैं पूछूंगा, गुड़गांव और धुलेरा. धुलेरा. अब मैं वहां पे ऑफिस बना नहीं सकता यार, कौन चक्कर रहेगा इस साइड पे वहां पे. धुलेरा इज गुड़गांव ऑफ 1995 ओनली. तो अभी जो वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, आप ऐसा ही समझो कि वो 1995 या 2000 का गुड़गांव है. तो ठीक है, मेरा एक काम अटका. तो जो लोग गुड़गांव में उस टाइम पे रह गए, सोचते हैं वो 20 साल पहले प्लॉट हाँ, इस रेट, तो आज भी उनके लिए है. तो बस मैं यही कहूंगा कि मेरा एक काम जो अटका पड़ा वो हो जाए, और उससे मैं आपकी सहायता लूंगा. तो वो होने पे आप मेरे को धुलेरा में कुछ छोटा मोटा दिला देगा, 25 साल बाद काम आ जाए, और कुछ पैसे मेरे को दे दे, ताकि हम लोग और इक्विपमेंट खरीद के अपना स्टूडियो बना ले. देखो, मेरी सोच वहां तक जाती है, तो मैं बोल रहा हूँ. अब आपके पापा तक भी ये खबर पहुंच जानी चाहिए. ठीक है ना? ओके, रेजिडेंशियल और कमर्शियल? रेजिडेंशियल. वंडरफुल. व्हाई सो? लोग कमर्शियल में कहते हैं कि काफी पैसा होता है. आई थिंक रेजिडेंशियल थोड़ा, इट इज माय ओपिनियन कि थोड़ा मेरे को पर्सनली सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट लगती है. अभी जैसा कि हमने कोविड एक्सपीरियंस करा है, तो आई थिंक एक मोर सिक्योर्ड एनवायरनमेंट या एक इन्वेस्टमेंट. A home is what everyone wants, an office is not what everyone wants. They can work from anywhere. Work of आजकल तो वो वर्क स्टेशन वाले वो स्पेसेस आ गए ना, उनको बोलते हैं co-working spaces. या लैंड बैंकिंग और रेडी पोजीशन. लैंड बैंक मतलब आप पार्क कर लो लेके. लैंड तो एज आई सेड कि लिमिटेड सप्लाई. एब्सोल्युटली. तो एनी टाइम लैंड इज बेटर. ओके, हाई राइज अपार्टमेंट्स और प्लॉटेड डेवलपमेंट? प्लॉटेड डेवलपमेंट. आई लव यू मैन. मैं अपनी वाइफ के पीछे पड़ा हूँ, कभी करे तो यही करेंगे, क्योंकि मेरे को खुद जड़ से, मैंने नया टर्मिनोलॉजी सीखा कि जड़ से बनाना मतलब खुद का बनाना है ना. हाँ बिल्कुल. ओके, आई लर्नड इट, एंड होपफुली गॉड विलिंग वन डे, व्यूअर्स, आई होप यू मेक दिस प्रोग्राम पॉपुलर इनफ सो दैट आई एम एबल टू अर्न दैट मच टू हैव अ हाउस ऑफ माय ओन एट लीस्ट. राइट? ऑलराइट. इन्वेस्टर माइंडसेट और एंड यूजर माइंडसेट? इन्वेस्टमेंट माइंडसेट विद एंड यूजर माइंडसेट एज वेल, दे बोथ गो हैंड इन हैंड. किसी एक का भी हम वो ले लेंगे कि हम सोच के ले लेंगे उस हिसाब से लेना है, फिर अपॉर्चुनिटी आ जाए. आई थिंक इन्वेस्टमेंट माइंडसेट विद एंड यूजर माइंडसेट बोथ गोज हैंड इन हैंड. ओके, आई थिंक इन्वेस्टर माइंडसेट and investor and end user heart set. I think that would be better. You answered it better. Yeah, the investor mindset and end user heart set. मेरा दिल जहाँ पे लगेगा, you know, that's it. Luxury segment or affordable housing? See, we can't choose one in this. दोनों के अपने अपने pros and cons है. Affordable category, yeah. बहुत सारी चीजें. So according to situation, I think we can choose affordable. But most of it can be affordable housing that people can go for. What I feel. More chances of appreciation. I think. हाँ. नहीं, appreciation की भी बात है, because see,
लग्जरी सेगमेंट की जनता कम है, अफोर्डेबल की कितनी है, they would want houses to live, so you can get more out of demand rent. of affordable segment Yeah. in the market. Infrastructure first or demand first? For me, infrastructure first, then demand follows the infrastructure. Demand follows only if the infrastructure is there. Perfect. So this is a very good, it's not a question, it's an insight. आप कहीं भी जा रहे हो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, उसके बाद पता Demand लग जाएगा, automatically डिमांड आता है. ऑटोमेटिकली आ जाएगी, likewise, you know. Okay. एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी और मेट्रो कनेक्टिविटी? Expressway connectivity. यस, मेट्रो में उतर के ट्रैफिक में ही फंसना है आपने, समझो मेरी बात को। माय टीचर यूज्ड टू से, करे कहाँ जाओगे मेट्रो? मैंने कहा सर मेट्रो बन रहे हैं, आई एम टॉकिंग यू अ डेकेड एंड अ हाफ अगो। उतरने के बाद कहाँ जाओगे मेट्रो से? वो ये पूछ रहे यूज्ड टू बी ब्लैंक की मतलब अब उतरो तो यू कांट रीच, हवा में तो घूमते रहो लेकिन नीचे उतरने के बाद कोई रास्ता नहीं है आपके पास। यस, एक्सप्रेसवे। Tier 1 buyers or NRI investors? Tier 1 buyers. I think they need more secure place. They need more knowledge in terms of more serious also. yeah, more serious. उनका हार्ट है उस चीज के अंदर। Yes. NRI तो इन्वेस्टिंग में ही आ जाएगा ना सीधा। या सोना रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे? Dwarka Expressway. मैं सोना रोड पे रहता हूँ। Sona Road is also good. Actually, Dwarka Expressway go near to Delhi Airport, and it's upcoming. या So- बट सोना रोड इज अ गुड प्लेस। Yes. या अच्छी जगह है। और हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे पानी नहीं भरता। फरीदाबाद और पलवल? Both Faridabad and Yeah, Palwal. this is another jinx. और नहीं हो सकता। फरीदाबाद has not been able to break from its नहीं। tinctured image. नहीं। ये फैक्ट्री है तो फरीदाबाद है, इंसान नहीं रह सकते वहाँ पे। जब ये वीडियो आएगा ना बस उस डेट से नेक्स्ट 3 इयर्स आप फरीदाबाद का ग्रोथ देखना। आई थिंक अब आ गया टाइम नेक्स्ट Well, 3। there you have the future generation speaking for you guys, so you know where to invest. Next time you put your hands inside your pocket and decide where to invest that buck that you have saved for so long. Gated society or independent floors? Gated Gated society, yes. Thank you so much. Very good. Amazing. बहुत ही बढ़िया. Now, a little bit more into this one. ठीक है? Buying at launch or buying after delivery? Buying at launch if the developer is right and it has a good background. So buying at soft launch always helps and helps You get the discounts that you can't imagine at Yeah. times, है ना? हाँ. soft launch में एक discounting होती है। 1500 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए स्क्वायर फुट तक का आ जाता है डिस्काउंट, मैंने सुना कई जगह Depend तो। project to Yeah. project, but always प्री लॉन्च में लेना ज्यादा बेटर है अगर डेवलपर का बैकग्राउंड ठीक है। वंडरफुल। कॉर्नर प्लॉट और पार्क फेसिंग प्लॉट? पार्क फेसिंग वेरी गुड। दोनों का अपना अच्छा है। दिस इज जस्ट माय इंडिविजुअल अप्रोच। डिपेंड करता है यार, एक्चुअली बोथ आर फाइन। पार्क फेसिंग इज गुड. Park facing is very good if there is no house next to yours and there is a house after that. That is also very good, like the one in which I am living. Okay, low rise floors or high rise stars? Both have their own pros and cons. High मुझे rise लगता है लो राइज ना, मेरे पर्सनल में। आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से हाई राइज अच्छा है लो राइज से कंपेयर। लो राइज से कंपेयर करके हाई राइज अच्छा है। देखो, एक तो हम वैसे ही अपने आज की डेट में ऐसे हो गए हैं कि गुड़गांव में एक पड़ोसी दूसरे को जानता नहीं है, उसके ऊपर मेरे सर पे कौन बैठा है, इतनी ऊपर कौन बैठा है, मेरे को वो भी नहीं मालूम कौन है। सो मेरे को लगता है कि आई थिंक that amazing thing that was there in Delhi that we used to be कि हम किसी के घर भी डिनर कर आ रहे, पहुंच गए, हाँ मैं वही खा कर आ जाऊंगा, अब वो नहीं होता हमारे बच्चों के साथ। बेटर They don't व्यूज go anywhere. बालकनी। हाँ, but yeah, if you are on you will escape yourself from some noise and you'll be able to stand and look at the lights. That would really be amazing. Yeah. Rental yield or capital appreciation? This we have talked. Capital but, appreciation. yeah, capital definitely. appreciation. Micro market expertise or citywide exposure? Micro market expertise with the knowledge of city-wise exposure. What diplomatic answers देते हो दोस्त आप? Not this or not that. दोनों इम्पोर्टेंट है। माइक्रो मार्केट जहाँ आप काम कर रहे हो, जिस एरिया में कोई ब्रोकर काम कर Okay. रहा है, उसकी नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और नॉलेज ओवरऑल होना अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड यू, वो बहुत important. Perfect. Golf course road or golf course extension? golf course extension road. Yeah, of course. Road is More beyond. possibilities of development. रोड इज बियॉन्ड रीच वैसे ही। सोना एलिवेटेड कॉरिडोर और द्वारका एक्सप्रेसवे? सोना elevated कॉरिडोर। चलो ठीक है, दैट्स गुड। इंडस्ट्रियल लेड ग्रोथ और रेजिडेंशियल लेड ग्रोथ? Residential led growth. ओह, वेरी गुड। फ्लिप इन 3 years और होल्ड फॉर 10 years? I think one hold is equal to 10 trades. So I think hold for 10 years. वंडरफुल। वन बिग टिकट इन्वेस्टमेंट और मल्टीपल स्मॉल प्लॉट्स? Multiple small plots. या बिल्कुल सही।
Don't put all your eggs into one basket. Yeah. It is so well said. gives you more range of हाँ. possible Land with road access or land near future infra. land near future infra. That is a higher chances of appreciation. Okay. Anything that you can approach by road is not necessarily gold. Yeah, I'm suffering that. I'm telling you. Anyway. Booking under construction or buying resale. Under construction, again, if developer is good, then under construction property gives you more returns in terms of appreciation. Okay, now this is the place where people like me are put at question, huh? Marketing hype or ground reality? Ground reality, Wonderful. Sales pitch or due diligence? due diligence, Broker network or direct investor relations? direct investor relations, Wonderful. Market timing or patience? market timing, Wonderful. Emotional buyers or logical buyers? the logical buyers always. In real estate, there is no place for emotions. There's no place for emotions, right? Yeah. Okay, let's have just one word for Gurgaon real estate. Unstoppable. Okay. Most underrated market right now. Palwal. Biggest mistake first time buyers make. They buy property with intent to short-term earnings, like with the mindset of not paying the full amount. I think that really creates a trouble. If Yeah, you're buying yeah. the property of 1 crore, you should have backup of 1 crore. हाँ, so never take that step कि ठीक है यार 15 लाख रुपए रखे डाल दो इसके अंदर बाद में पैसे दे देंगे जब आ जाएंगे अगर बाई चांस नहीं हुए तो क्या करोगे? Yeah. So always buy property when you are 100% sure you will have that amount of money. you can make that. Otherwise, you will land in a soup. Believe me, it is very, very, very painful. Okay. One factor buyers ignore but shouldn't. They ignore the ground reality sometimes. जैसे supposedly अब मैं घर लेने जा रहा हूँ तो अब एक ब्रोकर है, जैसा कि हमने इस पॉडकास्ट की शुरुआत करी थी कि एक ब्रोकर आपको राइट गाइडेंस देता है. आपने मुझसे कहा, मैंने मान लिया, बट उसकी ड्यू डिलिजेंस भी जरूरी है. उसकी ड्यू डिलिजेंस ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी कहे जैसे या भी कोई कैसे भी मान लो कहे. आप उसका ड्यू डिलिजेंस एक करो. खुद होमवर्क करना, एक ड्यू डिलिजेंस करना इक्वली इम्पोर्टेंट है. बहुत मुश्किल है. It's आप very difficult, but you will have to do. ये नहीं बोल सकते. खुद सेल्फ अवेयर रहना बहुत जरूरी है. Safest investment horizon. I think 3 years, minimum Okay. time of 3 years. I Okay. think One red flag while buying land. documentation, incompletion of documentation. If the chain of the past record is not complete, I think या वो कुछ 98 कई बार हो जाता है कि ब्रोकर कह देता है ये तो मिल जाएगा, ये हो जाएगा. नहीं तो नहीं 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 वो बिल्कुल नहीं. बाय वैसे नहीं करना चाहिए. 100% क्लीन पेपर्स ही हो तो बेस्ट है. बाय चीफ सिंपल सी बात है. पेपर वर्क इज द रियल वर्क. Everything falls dead in front of that. So paperwork is very important. Okay. Developer reputation or location, what matters more? developer reputation. Okay. What is the best time to enter the market? Best time to enter the market or an individual investment is soft launch. When just before the launch, developer gives you a discount. I think that is the best time. Okay. I have something to it. If you feel, I think the best time to enter the market is when you feel you now have the money to invest. Yes, Do it. Definitely. Don't wait. Don't wait. Hunt for the right persons or talk to people like Property Promotions. Get in touch with them and just do it. क्योंकि वेट करने से कुछ नहीं मिलेगा. वेट करने से पैसा मिलता अगर पैसा लगा हो. अगर पैसा लगा ही ना हो तो कुछ नहीं मिलेगा. You know, The best time is now. money and 7-star dish are alike. If they are not used within a frame of time, they both go stale. ठीक है? तो stale हो जाएगा. एक हफ्ते बाद आप वो मस्त सी दाल मखनी या चिकन जो लेकर आए 7-star होटल से उसे खा नहीं पाएंगे अगर टेबल पे रखी रही तो. और उसी तरीके से वो जो पैसा आपके पास रखा है ना, अगर आपके पास उसने 10 साल आपने रखा है तो वो 1 करोड़ की वैल्यू 10 साल के बाद आज की जो 1 लाख की है वो रह जाए. ये सोचिए. Right? Time is money. Yeah. 100%. Now, time is money. Yeah, you can say I have a slightly different arrangement with that. We'll discuss about that sometime. But yeah, one document people forget to check: Conveyance deed. conveyance deed. Okay. Previous conveyance deeds. Okay. Overhyped market right now. No, not at all. There's no overhyped market. सारी बढ़िया. Most promising belt for the next 10 years. Delhi Bombay Expressway. Okay. Yeah. ये तो बहुत There are लोगों ने बोला two है. locations: Delhi Bombay Expressway and Dholera and Bhavnagar Expressway. Okay. One myth about Dholera. People think that it will take time, but I'll tell you, ये तो है. time other than the usual. मतलब
सोचने से ज्यादा टाइम लगेगा, ऐसा है। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, वो तो होगा ही डेफिनेटली। देयर इज अनदर वन। मैंने जितनों से भी धोलेरा के बारे में बात करी है, कह रहे वहां तो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। आई डू नॉट नो व्हाट इट इज, वो कहते हैं, और वो तो जेल में बंद है, वहां पे तो जाना ही बेकार है। व्हाई डू दे से दैट? सर इंडिया में एक्चुअली ये लोग कहते हैं, बड़ी प्रॉब्लम है। आप खुद जाके वहाँ देखो, वहाँ के बारे में स्टडी करो कि क्या डेवलपमेंट्स हुई है, कैसा बोला गया था, जो जो वहाँ चीज़ें आनी है। अभी एक्सप्रेसवे इज जस्ट गोइंग टू स्टार्ट, एयरपोर्ट का कंप्लीशन चल रहा है। तो जाके जब तक खुद नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं मैं सुन लिया तो बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, सो देयर यू आर, गो एंड सी वंस। आई थिंक वोंट टेक मच, 15-20 हज़ार की जर्नी, आना जाना देखो, जाके पता लग जाएगा इफ यू आर इन्वेस्टिंग एंड फ्यूचर के लिए चाहिए तो। आई थिंक 4 साल का विंडो डालोगे तो आप आज जो 1 रुपया डालोगे उसका 1 रुपया 30 पैसा आपको 4 साल में 100% मिलेगा, जो मुझे लगता है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पे, एक्सप्लोर जो करी जा सकती है। इस पलवल द नेक्स्ट सोना? पलवल इज द फर्स्ट पलवल। ओह, वेरी गुड, अमेजिंग। लैंड इज सेफर देन फ्लैट्स? यस, एनी डे। अच्छा, ओके, ऐसा क्यों? सर लैंड में एक पर्सनल ओनरशिप आ जाता है, फ्लैट में भी आता है बट दैट इज वर्टिकल। दैट इज वर्टिकल, तो- वो डिवाइडेड ओनरशिप है। हाँ, और लैंड पे आपने अपनी ग्राउंड फ्लोर बनाया है, कल को आप 4 फ्लोर भी बना सकते हैं, फ्लैट से नहीं कर सकते, राइट? डेफिनेटली। या provided you have the permissions. Broker or direct from builder? ब्रोकर। Always a broker. Is real estate still the safest asset in India? यस। I too think that. Would you invest today with your own money? किससे पूछ रहा हूँ मैं? Well, they have come up with properties everywhere. Only and all real that. estate. Only real estate. Okay. And just for fun, biggest learning from your real estate journey that you've had? बिगेस्ट लर्निंग इज इटसेल्फ इज फ्रॉम अ जर्नी की अलग अलग बहुत कुछ सीखने को मिलता है अलग अलग ट्रांजेक्शन में। एक तो रियल एस्टेट मेरे को इसलिए भी इतना पसंद है, इतने तरीके के लोगों से जो मुलाकात होती है, तो हर क्लाइंट, हर ब्रोकर, हर डेवलपर के साथ एक मीटिंग, एक ट्रांजेक्शन, एक अलग एक्सपीरियंस है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक अलग अलग ट्रांजेक्शन से अलग अलग चीजें सीखने को मिली, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो, और इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, और इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो कहते हैं ना, जितना पुराना ब्रोकर उतना बढ़िया। तो आई थिंक ये यही एक्सपीरियंसेस से होता है। Wonderful. Great. You have seen it in your family, you know it very well. You have seen it कि how many people trust your father. It's so amazing, है ना? तो वहाँ से वो बहुत faith cultivate हो जाता है एक Definitely. तरीके से, है ना? Negotiation or timing, what wins the deals? टाइमिंग आई। Spoken like a true business owner. You know? Wonderful. Negotiation requires hard selling at times, friends, and I don't think that's a good idea. Yeah. So that brings us to the end of our discussion. But before what I wind up, there are two important questions I want to ask. What inspired you to get into real estate? अभी वैसे it has been now 7 years that I am actually working, but मेरे को actually I am 28 years old, तो मेरे को 28 साल ही हो गए हैं रियल एस्टेट में। That is very ironic क्योंकि Very, very, very well My said. वो कहते father हैं, is the into- apple doesn't fall far from the tree. my father is into real estate from 1995, तो बचपन से ही it has always been around। ऑफिस में आना जाना, स्कूल में भी ऑफिस आना जाना, देखना, ऑब्जर्व करना। तो वो पूरी जो जर्नी थी फ्रॉम चाइल्डहुड टिल कॉलेज, देन टिल व्हेन यू हैव टू डिसाइड दैट क्या करना है, वो बिलीव इतना स्ट्रांग होता गया कि एक विजन क्लियर होता गया। मैं लाइफ में रियल एस्टेट के अलावा कुछ करा ही नहीं है। अभी मेरे को 7 साल वैसे प्रैक्टिस करते हुए हो गए हैं। हाँ. और फिर जब मैंने शुरू करा करना, तो बिल्कुल ही 100% मैं श्योर हो गया कि एकदम राइट प्रोफेशन में मैं आया हूँ। क्योंकि रियल एस्टेट का क्या है कि इट इज, पीपल थिंक इट इज जस्ट अबाउट बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टीज, बट एक्चुअली इट इज नॉट। मैं It's a lot हमेशा more ये than कहता that. हूँ। तो वो जब आप चीजें देखते हो, व्हेन यू स्टडी इट, बहुत सारी चीजों के बारे में आपको पता लगता है। तो जितना आपको पता लगता है, इट एक्साइट्स यू मोर कि किस तरीके से प्रोजेक्शंस बनती है, नंबर्स बनते हैं, किस तरीके पे कहाँ डेवलपमेंट आने वाली है, वहाँ कैसे ग्रोथ होगी। आप पूरा एक चार्ट पढ़ते हो तो आई थिंक इट ड्राइव्स यू। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा रीजन रहा
एंड तभी अब हुए, और आई डोंट थिंक कि मैं रियल एस्टेट के अलावा कभी कुछ भी करूंगा या कर पाऊंगा, क्योंकि आई थिंक मेरे हिसाब से ये इस दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस है. नहीं, इट इज डेफिनेटली, देखिए वो उसमें मैं बोलूंगा जो बिजनेस करो, for them that is the end of everything, but one thing what you have said is definitely और it stands एक true. चीज मैं और ऐड करना Real estate चाहूंगा. never goes waste. इन टुडेज टाइम जैसा अब कॉर्पोरेट कल्चर है, बहुत लोग काम कर रहे हैं जैसा कर रहे हैं. अगर हर रोज सुबह उठ के अगर आपको ये लग रहा है कि ये आज का दिन मजा नहीं आ रहा, तो आई थिंक फिर यू आर नॉट इन द In राइट the right, वर्क. हर रोज वो मजा आना बहुत जरूरी है. हर रोज एक पॉजिटिव माइंडसेट होना कि हाँ ये चीज जो मैं कर रहा हूँ, हर रोज ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मजा नहीं आ रहा है यार काम करते हुए, ये क्या कर रहा हूँ मैं अपने साथ. such an amazing thing this तो young वो- Turk has told, you know, आपने जो बात बोली है ये बहुत ही amazing. I think all the youth, in fact why the youth, everyone who is doing whatever you are doing, just stop everything and just ponder upon this for 1 minute कि क्या सुबह उठने के बाद are you really excited for the day कि I am doing something amazing. I think there lies the answer to everything in your life. What जैसे a wonderful जहाँ thing. No, से देखिए, the future is in such amazing hands who have such divine philosophies. It is amazing. Manifestation, coach, वो ये पता नहीं 100 चीजें हैं that are happening, but at the end of the day आपको सुबह उठ के ये नहीं लग रहा कि मैं सही कर रहा हूँ. What is the point? बाकी सब कुछ बदलता रहेगा, सफर चलता रहेगा, बट हर रोज सुबह उठ के जब जूते के फीते बांध रहे हो तो वो एक चमक बनी रहनी चाहिए. बस वो एक मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है. Brilliant. What does your vision of real estate say? रियल एस्टेट विजन तो अभी हम लोग आने वाले टाइम में आप प्रॉपर्टी प्रमोशन विल गो टू अ न्यू हाइट्स. अभी हम लोग बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं इंडिया में. अगर पूरे इंडिया की मैं बात करूं तो आने वाले 5-10 सालों में जो हम काम करने वाले हैं, आई थिंक पीपल विल सी. और विजन बहुत अच्छा है. जो 2-3 चीजें हैं, जो कनेक्टिविटी है, उधर जहाँ अच्छी कनेक्टिविटी आने वाली है तो लोगों का वहाँ इंटरेस्ट बना रहे, उस तरीके से लोग देखे. तो यही विजन है. कनेक्टिविटी जहाँ आने वाली है वहाँ आपको प्रॉपर्टी प्रमोशंस की प्रेजेंस हमेशा मिलेगी. So you need to stay connected to property promotions if you want to stay connected to India, because जहाँ पे ये wherever you see that board or that sign on an office of property promotions, it means that something is happening over there, because that is what their record says for the past 25 to 30 years, because it has only given in return to whatever people have entrusted them with. Whether it has been their faith, their investment, their hard-earned money, their life streams, property promotions has taken it a step further and actually, displayed it in reality. Yeah, there is that result that you wanted. The point A is defined and the point B is also defined. Now, the point C, that is called the choice, rests with you. कि आपको कदम लेना है. एंड लाइक दैट वन क्वेश्चन, व्हाट लाइक द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, व्हेन यू हैव मनी और आपको लगता है इसको डालना है, उसी टाइम डाल दो. दैट्स इट एंड फॉरगेट अबाउट इट. पुट इट इन स्मॉल पॉकेट्स. जैसे उन्होंने बोला, जरूरी नहीं है कि हम लोग सीधा 1000 एकड़ खरीदेंगे या 2000 गज का फार्म हाउस देंगे. भाई कोई बात नहीं, 100 गज का ले लो, छोटी उतना छोटी है, ले इन्वेस्टमेंट लो. से स्टार्ट. 100 गज के ले लिए और 10 के 10 निकल जाएंगे. 1000 गज का अपने आप आपके पास एक अच्छी जगह 500 गज की बहुत बढ़िया कोठी बन जाएगी आपकी. इट इज पॉसिबल. That is what he's trying to say. Right? Yes, definitely, It definitely. has been an amazing discussion with you, Sonal. Thank you so much. Lovely. Thank you so much. It's an honor. Really lovely, and thank you so much for being with us over here. And as a sponsor, I thank you from the bottom of our heart, the entire team. So that's what it is. When you see the country's future resting on shoulders like young Sonal Kukreja, you can be sure that you are in safe hands, and so are your children and your generations. ये बहुत जरूरी है क्योंकि नींव रख दी गई है. ठीक है, उसमें एक पेड़ निकल आया, वो बरगद का पेड़ बन के फैलेगा कई सदियों तक, कई सालों तक, कई दशकों तक. और मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे शो पे ऐसा एक मौका मिला कि हम एक यंग व्यापारी को लेकर आए जिसने बात करी रियल एस्टेट की और हमें बताया ऑन द सेट्स ऑफ द ग्रेट इंडियन ब्रांड शो. थैंक यू आवर टाइटल स्पॉन्सर प्रॉपर्टी प्रमोशंस. Young सिंधी व्यापारी. Thank you. Okay, I would put it that way, whichever way you want, because it is your world and your word as well, right?
तो दिस इज व्हाट इंडिया इज ऑल अबाउट. साथ देगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया. इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोग 140 करोड़ की आबादी नहीं, एक नेटवर्क सिस्टम है एंड वी शुड लर्न टू सपोर्ट ईच अदर. रोर एज लाउड एज पॉसिबल, you know, be vocal for local, and that is how you go global, right? Next episode we'll meet someone very, very special. Thank you so much. Sudarshan signing off. Thank you so much. It's rocket launching day, right on, it's time to play. All set, ready to go, far away to the show. Dressed up in silver suit, climbing up with gravity shoes, buckled up